Hello students, I hope you're doing well. Today we will be starting a very interesting chapter of biology, and that is chapter number 9 of your class 11 biology NCERT textbook, and that is biomolecules. And I must tell you, this chapter is not just interesting but also a very fundamental and basic chapter of NEET biology syllabus. On an average, 3 to 4 questions are being asked from this chapter every year. And I must also tell you one more important thing. This chapter stands at the junction point between two subjects, namely biology and chemistry. So बच्चों, ये दो subjects को connect करने वाला chapter है. एक है biology और दूसरा है chemistry. So this becomes a very important as well as a very interesting chapter. आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं discussion की. तो first of all, the term is biomolecules. Now, you must ask, what does this term biomolecules mean? Very simple. Bio means life or living organisms, whereas molecules means molecules. So, simply speaking, we can say molecules which make life possible are called as biomolecules. Starting from the very basics, the first term is molecule. What is a molecule? A molecule is a group of chemically combined atoms. For example, बच्चों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें H2, then in hydrogen molecule, two hydrogen atoms are connected with the help of a single covalent bond. This is not merely a collection of two hydrogen atoms. These are bonded. Okay, so that is what a molecule means. A group of chemically combined atoms. Then in chemistry, we come across two types of molecules, or molecules are broadly classified into two types, organic and inorganic. So you should ask, sir, what is an organic molecule? Molecules which compulsorily contain at least two types of atoms, namely carbon and hydrogen, are called as organic molecules. For example, बच्चों, अगर बात की जाए तो say for example methane, CH4. Does this molecule contain carbon? Yes. Hydrogen? Yes. So this is an organic molecule. Another example is CO2. Does this contain carbon? Yes. Does this contain hydrogen also? Answer is no. So CO2 is a carbon containing molecule, but CO2 is not an organic molecule. ये organic molecule नहीं है. Similarly बच्चों, अगर बात की जाए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या इसमें कार्बन है? यस. क्लोरीन है? यस. लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो यह भी एक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कहा जाएगा, लेकिन यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता. सिमिलरली अगर बात करें बच्चों H2O, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? इनऑर्गेनिक. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा मॉलिक्यूल है? इनऑर्गेनिक. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है? इनऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. ऑलराइट. Now, we come to one more example. See glucose. You must have heard the term glucose. C6H12O6. Does this contain carbon? Yes. Hydrogen? Yes. ऑक्सीजन भी है एक्स्ट्रा. ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. दो चीजें जरूर उसमें होनी चाहिए. वन इज कार्बन एंड द अदर वन इज हाइड्रोजन. दैट्स इट. सो बच्चों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये समझने के बाद, नाउ वी कम टू द टर्म बायोमॉलिक्यूल्स. All the organic compounds or organic molecules which can be obtained from a cell or a tissue or a living organism can be called as biomolecules. That is what biomolecules are. They are organic molecules. That is the basic thing you must understand by this point of time. Then we come to an important thing which you must remember, and that is all biomolecules are organic molecules, but all organic molecules are not biomolecules. For example, polythene. बच्चों, पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन इज अ पॉलीमर. पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट्स. So it is a macromolecule, a long chain molecule which is made up of several repeating units of ethene, C2H4. all right. तो इथीन के पॉलीमराइजेशन से केमिकल फैक्ट्रीज में किसका फॉर्मेशन किया जाता है? पॉलीथीन का. पॉलीथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन पॉलीथीन का फॉर्मेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता नहीं है. तो हम कहेंगे कि पॉलीथीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन पॉलीथीन बायोमॉलिक्यूल नहीं है. याद रखेंगे, ऑल बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बट ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट बायोमॉलिक्यूल्स. सो मूविंग ऑन, देन इफ you look at the life on planet Earth, then there are variety of living organisms on Earth. But you know, despite
मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ हम अर्थ पर देखते हैं वो ऊपर से कितना ही डिफरेंट क्यों ना दिखते हो, लेकिन एक बेसिक लेवल पर अगर हम बात करें, एटॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें, एंड यू ऑल नो दैट ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अगर बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स. If we analyze, say for example, if we perform elemental analysis of a plant tissue or animal tissue or a microbial paste, बच्चों को कई बार यहां पर डाउट आता है, हमें पता है सर ये माइक्रोबियल पेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल इकोलाई इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट. तो कई सारे इकोलाई सेल्स का जो ग्रुप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोलाई को अगर हम बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करें न्यूट्रिएंट मीडियम में और फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए तो वो जो एक नीचे एक पेस्ट की फॉर्म में हमें मिलता है. सारी बैक्टीरियल सेल्स किस फॉर्म में दिखती है हमें? पेस्ट, जस्ट लाइक टूथपेस्ट, ऑलराइट. सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोबियल पेस्ट. प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट का एलिमेंटल एनालिसिस करने पर बच्चों हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो सब में सेम होते हैं, है ना आश्चर्य की बात. ऊपर से डिफरेंट दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या बात कॉमन है? दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स. नाउ इफ द सेम एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ नॉन लिविंग पीस ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज अर्थ क्रस्ट, उस पर भी अगर हम सेम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें तो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे बच्चों, वो सारे एलिमेंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलते हैं वो सारे एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं. देयर इज नो डिफरेंस as far as quality of elements is concerned. Quality का मतलब क्या है यहां पर? Quality of elements means types of elements. वो सब में सेम है. लिस्ट क्या होगी? सिमिलर. लेकिन डिफरेंस किस बात का होता है बच्चों? क्वांटिटी का डिफरेंस होता है. रिलेटिव क्वांटिटी या रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट is different as compared to a living organism, as you can see in the table. For example, this is a table from your NCERT book. So if you look at this table, आप देखिए एलिमेंट्स की हम बात करें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ऑल दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन बोथ अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ह्यूमन बॉडी. लेकिन इनका जो रिलेटिव अमाउंट है परसेंटेज टर्म्स में, परसेंटेज बाय मास, वो डिफरेंट आप देख सकते हैं. हाइड्रोजन 9.5% इन ह्यूमन बॉडी वेयर एज ओनली 0.14% इन अर्थ क्रस्ट. कार्बन 18.5% इन ह्यूमन बॉडी वेयर एज ओनली 0.03% इन अर्थ क्रस्ट. अगर हम कंपैरिजन करें कितना टाइम से, तो देखिएगा बच्चों कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 0.03 अगर इसका 10 टाइम्स करें तो ये आएगा 0.3, देन 3.0 एंड देन वी कम टू 18.0. इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 18. तो देखिएगा बच्चों कितना डिफरेंस आ रहा है. यहां से यहां तक आया 10 टाइम्स डिफरेंस, 10 गुना. यहां से यहां भी 10 टाइम्स डिफरेंस, फिर 10 गुना, और यहां से यहां पर 6 टाइम्स डिफरेंस. तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ बच्चों? देखिए आप 10 इंटू 10 इंटू 6, ये हो गया बच्चों 600 टाइम्स. ये हो गया 600 टाइम्स. तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस: अमाउंट ऑफ कार्बन in the body of human being, in human body, is more than 600 times as compared to Earth's crust. तो यहां से बात, एक बहुत सिंपल सी बात आपके समझ में आनी चाहिए बच्चों, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्टीमेटली क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स. एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पर आपको ऑर्डर ध्यान रखना है. ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो वो इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 1. नंबर 2, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स ज्यादा है? देखिएगा, दो एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है सिलिकॉन. बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हैं. कैसे? अगर बात करें तो बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हैं. से फॉर एग्जांपल यहां पर सबसे पहली बात, अर्थ क्रस्ट में सबसे टॉप पर क्या है? सैंड और सॉइल. और सॉइल के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा क्या होता है? सिलिका. सिलिका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2. तो यहां से आप याद रख सकते हैं. देखिए बच्चों, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 46.6% एंड सिलिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली 27%. सो दैट्स इट. और फिर हम आते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर. क्या कंक्लूजन? अभी जो हमने देखा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन, the significant or important differences between living and non-living are not qualitative, rather they are quantitative. यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बच्चों, वो क्वालिटी के टर्म्स में नहीं है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के एंगल से नहीं है. किस एंगल से है? उनके रिलेटिव अमाउंट से, या यूं कह लें रिलेटिव क्वांटिटी के कारण. इसीलिए वो डिफरेंसेस कैसे हैं बच्चों? दे आर
क्वांटिटेटिव। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों हमें आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 65%, देन कार्बन 18.5%, देन हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट 0.2%, एंड देन मैग्नीशियम 0.1%। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें से ये जो 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा परसेंटेज बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इन्हें बच्चों साइंटिस्ट लोग बोलते हैं बिग 4 एलिमेंट्स। बिग 4 एलिमेंट्स यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन्हें बोलते हैं बिग 4 एलिमेंट्स। और ये टोटल मिलकर के बनाते हैं 96.3% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास। और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये बनाते हैं रिमेनिंग 3.7% मास। गेटिंग द पॉइंट? अब ये 4 मेजर एलिमेंट्स आप इजीली याद रख ही पाएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में 70% के करीब क्या होता है? वाटर, और वाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्यों है। देन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये जो बाकी के एलिमेंट्स है बच्चों, इनका ऑर्डर आप बहुत इजीली एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। न्यूमोनिक है, एंड दैट इज कैल्शियम पी के स्नान कॉल मुझे। कैल्शियम पी के स्नान कॉल मुझे। यू आर सेइंग टू योर फ्रेंड कैल्शियम पी के स्नान करो एंड देन कॉल मुझे। सिंपल। कैल्शियम फॉर कैल्शियम, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम, सल्फर, एस फॉर सल्फर एंड Na फॉर सोडियम। स्नान में S इज सल्फर, Na इज सोडियम, देन कॉल फॉर क्लोरीन एंड मुझे मींस मैग्नीशियम। सो दिस वे यू कैन इजीली मेमोराइज दिस ऑर्डर। ऑलराइट, आइए एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। This question has been asked in All India Pre-Medical Test. Along with carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen, which of the following elements make up more than 98% of human body? And the options are, first is calcium and phosphorus. Then बच्चों अगर आपको ये ऑर्डर याद है पिछला, आप देखिए तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि क्या आंसर होना चाहिए। 96.3% तो यहीं से हो गया, बाकी के 2 कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो देखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वेरी सिंपल। सो अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑर्डर आपको याद रखना है। अब ये जो हमने मेजर एलिमेंट्स पढ़े बच्चों, 11 एलिमेंट्स, उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, जिन्हें बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। एंड दीज टुगेदर मेक लेस देन 0.01% बाय मास ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड द एग्जांपल्स आर आयरन। फॉर एग्जांपल, आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, the oxygen carrier found in the blood. Then iodine is a part of a hormone released by thyroid gland. आप सभी को जानते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर। कॉपर is a cofactor of tyrosinase enzyme which is responsible for the formation of melanin pigment in the skin which is responsible for skin coloration. Zinc is a cofactor of carbonic anhydrase enzyme, and silicon is found in bone matrix. So these elements are also present along with the main elements which make up most of the part of human body. ये भी आपको ध्यान रखने हैं। Then we come to chemical composition of cells. यानी एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिलेटिव परसेंटेज क्या है डिफरेंट कंपाउंड्स का। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन सेल्स इज ऑफ कोर्स वाटर, एंड इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना? अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, then organic compounds found in cells can be broadly categorized into 4 categories based on their biological role or biological function. These are proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids. और ये सारे organic compounds बच्चों, इन्हीं को हम combinedly क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है इनका, है ना। आप बहुत इजी वे में ऑर्डर भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे ध्यान रख सकते हैं? बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना। आप बहुत सिंपल वे में याद रख सकते हैं। प्रोफेसर ने कार ली, प्रोफेसर ने कार ली। यहां पर प्रो फॉर प्रोटीन्स, Na फॉर न्यूक्लिक एसिड, कार फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ली फॉर लिपिड्स। बहुत इजी वे में आप ये याद रख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एंड देन 1% इज फाउंड बाय आयंस विच मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नाउ we again come to the definition. All the organic compounds which can be obtained from a living cell or a tissue or an organism can be called as biomolecules. Biomolecules. Now एक important बात और आती है बच्चों कि water, of course, all organisms contain water, but without water जो plant tissue या animal tissue का, किसी भी tissue का weight होता है, उसे हम बोलते हैं dry weight, and animal के dry weight में
60 to 70% पार्ट इज फाउंड बाय प्रोटीन्स, क्योंकि एनिमल बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में 80% पार्ट इज फाउंड बाय कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज प्लांट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, made up of cellulose, and cellulose is a carbohydrate. So approximately 80% part of dry weight of plant body is made by carbohydrates. Simple सी बात ध्यान रखें. Then broadly these are the organic compounds found in cells. सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का. So we come to carbohydrates. These are main source of energy. और we can also say these are main respiratory substrate, means cellular respiration के process में इन्हीं को mainly use किया जाता है. These are also instant sources of energy. इन दोनों का रीजन ये है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन आसान होता है फैट्स की तुलना में. जब इनका ऑक्सीडेशन आसान है, मींस एनर्जी कैन बी इजीली डिराइव्ड, एनर्जी कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसके साथ ही बच्चों अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं, तो बहुत सिंपल सा रीजन है. आप सभी ने एक सिंपल सा वर्ड सुना है डिहाइड्रेशन, जिसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ वाटर. उसका ऑपोजिट होता है हाइड्रेशन, मींस एडिशन ऑफ वाटर. तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एनालिसिस किया जाए तो बच्चों इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा है जैसे कार्बन एटम्स के साथ क्या ऐड कर दिए गए हों, वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज व्हाई द नेम carbohydrates. In other words, we can also say in their molecular formula the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, same as in case of water molecule, 2:1. Generalized molecular formula is CxH2O whole Y. For example, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this is number of carbon atoms and this is number of water molecules. नाउ एक और सिंपल सा वर्ड आता है बच्चों सुगर्स. क्या होते हैं सुगर्स? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड एज सुगर्स. अब क्या मीनिंग है इसका? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मीनिंग है ये समझिएगा. पॉइंट वाइज ऐसे याद रखना है आपको. पहला फीचर, molecular weight should be low. Simple means molecular weight should be low. Then chemically these must be carbohydrates. These must also be soluble in water and sweet in taste. ये चारों फीचर्स जब आपको एक साथ किसी मॉलिक्यूल में दिखें तो समझ लीजिएगा वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट. That's it. और एक भी फीचर मिसिंग हुआ तो उसे हम सुगर नहीं बोल सकते. So simple. Then we come to classification of carbohydrates on the basis of products of hydrolysis. Carbohydrates are broadly classified into three categories. These are monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Hydrolysis reaction simply means a reaction in which a molecule is broken down with the help of water molecule is called as hydrolysis reaction. तो देखिएगा बच्चों, these are the types of carbohydrates. सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स, जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. These cannot be hydrolyzed. All right. Examples are glucose and fructose. Then we come to oligosaccharides. Oligo means few. Mono means one, single unit. Oligo means few, whereas poly means many. So oligosaccharides इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं. कितने कैसे बने हुए हैं? Made up of 2 to 10 monosaccharide units. इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है. इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, और इनके हाइड्रोलिसिस से कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें मिलेंगे? 2 to 10. फॉर एग्जांपल maltose, lactose, sucrose, all these are examples of oligosaccharides, and all these are disaccharides, means made up of 2 monosaccharides. Then we come to polysaccharides. Poly means many, so they are made up of many monosaccharides. The question is how many? The answer is very simple, more than 10 monosaccharide units से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स. एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों इसके सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन. सो बोथ दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड व्हेयरएज मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. देन वी कम टू मोनोसैकेराइड्स. पहले ही बात कर चुके हैं हम. दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, एंड ऑल मोनोसैकेराइड्स आर शुगर. नाउ इन जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स के लिए x is equal to y. x is equal to y. And the range of x is 3 to 7. Range of x कितना होगा? 3 to 7. Minimum 3 carbons, maximum 7 carbons. And on the basis of number of carbons, monosaccharides are classified into 5 categories or 5 types. And these are trioses, tetroses, pentoses, hexoses and heptoses. बहुत सिंपल बातें हैं बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल बातें हैं. ध्यान से सुनना है बस आपको. Tri means 3, tetra means 4, penta means 5, hexa means 6, hepta means 7. So similarly, trioses means monosaccharide containing 3 carbons. So formula क्या होगा? Generalized formula will be CnH2nOn. Simple, right? तो C3H6O3, tetrose C4H8O4 and so on.
हेक्सोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। एग्जांपल्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे बच्चों, एग्जांपल्स याद ही करने हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड सो ऑन। ग्लूकोज इज अ हेक्सोज। कितने कार्बन्स हैं? 6। फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ हेक्सोज। राइबोज, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, राइबोज इज अ पेंटोज। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज इज आल्सो अ पेंटोज। क्योंकि अब देखिए, लेकिन एक डिफरेंस है, डीऑक्सीराइबोज इज एन एक्सेप्शन ऑफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसमें कितने कार्बन? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। तो आपने देखा बच्चों, इसमें एक ऑक्सीजन क्या है? कम। तो आपको इसको एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना है। डीऑक्सीराइबोज इज एन एक्सेप्शन ऑफ द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें एक ऑक्सीजन क्या है? कम। नाउ केमिकली अगर हम बात करें, कार्बन एटम्स के नंबर पे बेसिस पे हमने बात की, अब हम केमिकली अगर बात करें, केमिकली ऑल मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्या मीनिंग है इसका? पॉलीहाइड्रोक्सी मींस मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। क्वेश्चन है कितने? द आंसर इज सिंपल, मोर देन वन। एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे और मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर में इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और या फिर कीटोन ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हम उसे बोलते हैं एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हम उसे क्या बोलते हैं? कीटोज। दैट्स इट। और बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप का जैसा स्ट्रक्चर होता है, एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे यहां प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। गेटिंग द पॉइंट? वो कैसा होगा? सब टर्मिनल, यानी एंड से अंदर की तरफ। दैट्स इट। अब यहां पर आप देखिएगा, हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रायोजेस के हमने एग्जांपल लिए, ये भी ट्रायोज है, ये भी ट्रायोज है। 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3। बट आप देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उस नजरिए से आपको इसको देखना है। देखिएगा यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप CHO। नाउ आप पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में कि प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन कीटोन एंड देन OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? कीटोन। तो ये क्या है? कीटोज मोनोसैकेराइड। यहां एल्डिहाइड, तो ये कौन सा है? एल्डोज मोनोसैकेराइड। वेरी सिंपल, नाम से हिंट मिल रहा है बच्चों। देखिएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ओन पीछे सफिक्स ये बता रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, और इसके नाम में ही एल्डिहाइड छुपा हुआ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो दिस इज एन एल्डोज। अब बच्चों इन दोनों नोमेनक्लेचर को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, तो गौर कीजिएगा, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दीज आर, एक तरफ एल्डोज दूसरी तरफ कीटोज के एग्जांपल्स हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डोज है और कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पे ट्रायोज है। सिमिलरली एल्डोज, राइबोज एक एल्डोज है और उसमें 5 कार्बन हैं, तो ये क्या है? पेंटोज भी है। ठीक है। एक और बात बच्चों, आप नोमेनक्लेचर से, नेम से ये पता लगा सकते हो कि कौन एल्डोज और कौन कीटोज। एक सिंपल तरीका बताते हैं, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के पीछे सफिक्स अगर आपको ओज मिले तो वो क्या है? एल्डोज है। एल्डोज के पीछे सफिक्स आपको क्या मिलेगा बच्चों? ओज। वहीं पर आपको कीटोज के पीछे सफिक्स मिलेगा यूलोज। कीटोज के पीछे सफिक्स क्या मिलेगा? यूलोज। ध्यान रखिएगा, है ना, कीटोज के पीछे सफिक्स मिलेगा यूलोज। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिएगा राइबोज, ये क्या है? एल्डोज। राइब्यूलोज ULOS कीटोज। इरिथ्रियोलोज ULOSE कीटोज। ग्लूकोज OSE एल्डोज। लेकिन आप यहां देखोगे बच्चों तो ये क्या है? यहां तो ओज लिखा हुआ है जबकि ये कीटोज की तरफ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, इस नोमेनक्लेचर सिस्टम का एक ही एक्सेप्शन है और वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की नेमिंग इस नोमेनक्लेचर सिस्टम से पहले कर दी गई थी, तो ये एज इट इज चला आ रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज कीटोज होता है। आइए बच्चों अब देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना, इसको अप्लाई करते हैं। दोनों नोमेनक्लेचर सिस्टम को हम कंबाइन करेंगे। देखिएगा, वी कैन से राइबोज इज एन एल्डोपेंटोज। राइबोज इज एन एल्डोपेंटोज। इसको वापस देखिएगा आप, राइबोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 5। तो ये क्या है? पेंटोज। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ये क्या है? एल्डोज। दोनों को कंबाइन किया और हमने क्या लिख दिया? राइबोज इज एन एल्डोपेंटोज। सिमिलरली वी कैन से डीऑक्सीराइबोज इज एन एल्डोपेंटोज, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स की। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का सिंपल मीनिंग ये होता है बच्चों कि हाउ डज अ कंपाउंड बिहेव्स विथ लाइट और रेस्पॉन्ड्स टू लाइट। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका क्या मीनिंग है? इसका यह मीनिंग है बच्चों कि एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, बाकी सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं
they rotate plane polarized light in either clockwise direction or anti-clockwise direction. अब बच्चों ऑब्वियसली आपके मन में एक सिंपल सा डाउट आना चाहिए, सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो सुनिएगा बच्चों ध्यान से, जो लाइट बल्ब से आता है या सन से हमारी तरफ आता है सनलाइट, वो होता है एक्चुअली अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, नॉर्मल लाइट इज अनपोलराइज्ड। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है बच्चों, नॉर्मल लाइट में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं दे आर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। लेकिन जब हम उसको एक डिवाइस से पास करते हैं जिसका नाम होता है पोलराइजर, तो ये इसके प्लेन्स को, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन्स को एक सिंगल प्लेन में ही अलाउ करता है पास होने के लिए, यानी इट रेस्ट्रिक्ट्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स इन अ सिंगल प्लेन, और उस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन इसे रोटेट कर देगा इन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करें बच्चों, कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एसिमेट्रिकल, यानी जिनके स्ट्रक्चर में, जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, एसिमेट्री, या यूं कहें उसी के लिए एक दूसरा वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड, और वो है कायरलिटी। जिन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में कायरलिटी होगा या एसिमेट्री होगा, वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमेट्रिकल। गौर कीजिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल, यानी हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एसिमेट्री या कायरलिटी एब्सेंट है, इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन मींस एसिमेट्रिक कार्बन। अच्छा, कायरल कार्बन क्या होता है, ये हम बहुत इजीली समझ सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, which is the simplest monosaccharide. This is the structure of glyceraldehyde. आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्बन से 3। IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 जिस पर एक स्टार मार्क लगाया हुआ है, ये है कायरल कार्बन। ये इंडिकेट कर रहा है ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। कैसे पता करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता हो। आप सभी जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4। तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाने चाहिए इसको, सबसे पहली बात। दूसरा, इस 4 जो सिंगल बॉन्ड्स बनाना है, इस पर जो एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए आप, सिंगल बॉन्ड पर हमने कट कर दिया हाफ, सिंगल बॉन्ड हाफ कट कर दिया, सिंगल बॉन्ड हाफ कट कर दिया, इस सिंगल बॉन्ड को भी हाफ कट कर दिया। अब देखें आप, इस सिंगल बॉन्ड पर ये ग्रुप अटैच्ड है CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, इस सिंगल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इस सिंगल बॉन्ड पर एक CH2OH ग्रुप अटैच्ड है, इस सिंगल बॉन्ड पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कार्बन के साथ ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जो कि हमने रेड सर्कल्स के अंदर इसको क्लोज किया है बच्चों, आप देखें वो सब के सब क्या है, डिफरेंट। यहां पर है हाइड्रोजन एटम, यहां पर है CH2OH, यहां पर है OH और यहां पर है CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ये चारों ग्रुप्स इस कार्बन से जुड़े हुए क्या है, डिफरेंट। तो हम कहेंगे इन दिस मॉलिक्यूल कार्बन एटम नंबर 2 इज अ कायरल कार्बन एटम, और ये मॉलिक्यूल एज अ होल कैसा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल यानी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्योंकि हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में, इस कार्बन के अराउंड यहां पर एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसा है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही कैसा है, एसिमेट्रिकल। और ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे बच्चों, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे इन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमेट्रिकल, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, न तो क्लॉकवाइज और न ही एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि ग्लिसरल्डिहाइड कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगली बात सुनिएगा बच्चों, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो एक टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, वो क्या शो करते हैं, एक टाइप का आइसोमेरिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। It means such compounds are found in 2 mirror image forms called as enantiomers,
One mirror image form is called as D form or D enantiomer, whereas the other mirror image form is called as L form or L enantiomer. ध्यान रखिएगा, एक मिरर इमेज फॉर्म को क्या बोलते हैं? D फॉर्म, दूसरे को क्या बोलते हैं? L फॉर्म. तो ये देखिएगा बच्चों, यहां पर D and L forms of glyceraldehyde की हम बात करेंगे. This is D form of glyceraldehyde, this is L form of glyceraldehyde. कैसे पता चला? गौर कीजिएगा, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये हम जानते हैं कैसा है, कायरल. हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं बात. तो ये कायरल कार्बन है, इसमें एक ही कायरल कार्बन है, सेकंड नंबर. अब देखें आप, इससे जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं वो डिफरेंट है. ये OH जो आप देख रहे हैं, इसमें इकलौता कायरल कार्बन कौन सा है? C2. C3 कायरल नहीं है बच्चों, क्योंकि जो C3 है आप देखें उसमें ये C3 पर ये 2 H एटम्स जो है वो क्या हो जाएंगे यहां पर? सेम. तो यहां पर 2 H एटम्स, कोई भी 2 ग्रुप सेम होने पर हम बोलेंगे वो कार्बन एटम कैसा है? कायरल नहीं है. तो यहां पर इस C3 के साथ 2 हाइड्रोजन एटम सेम जुड़े हुए हैं, सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, तो हम कहेंगे C3 कार्बन कायरल कार्बन नहीं है. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, कौन सा? C2. उस पर जुड़ा हुआ OH ग्रुप कौन सी साइड है? प्लेनर स्ट्रक्चर में कौन सी साइड लिखा हुआ है? राइट साइड. तो हम इस मॉलिक्यूल के नाम से पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल D. ओके. और इसका जो मिरर इमेज फॉर्म होगा, ये बच्चों इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज फॉर्म होगा, उसमें हम देखेंगे इस कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड. तो इसके नाम से पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल L. ध्यान रहे बच्चों, ये जो नोटेशंस है कैपिटल D एंड कैपिटल L, इसका इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. मींस किसी मॉलिक्यूल के नाम से पहले अगर कैपिटल D लिखा हो तो ये जरूरी नहीं है बच्चों कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा, या किसी मॉलिक्यूल के नाम से पहले L लिखा हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो लेवो रोटेटरी ही होगा. ऐसा कोई रूल नहीं है. तो फिर ये कैपिटल D एंड कैपिटल L नोटेशंस हमें क्या बताते हैं? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर किसी मॉलिक्यूल के नाम से पहले कैपिटल D लिखा हो तो इसका सिंपल सा मीनिंग है डेक्स्ट्रो. कैपिटल L का मतलब है लीवो, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है बच्चों कि प्लेनर स्ट्रक्चर में, इस प्लेनर स्ट्रक्चर में, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं बच्चों फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, इस प्लेनर स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH किस साइड लिखा होगा? राइट हैंड साइड. दैट्स इट. तो नाम से पहले क्या आएगा? कैपिटल D. और अगर प्लेनर स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा होगा तो नाम से पहले क्या आएगा? कैपिटल L. दैट्स इट. आइए बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, यहां पर सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड. हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे ज्यादा, एक ऐसा मॉलिक्यूल की जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा. This is the structure of planar structure of glucose. Now, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये जो C2 है बच्चों, ये कायरल कार्बन होता है. कैसे चेक कर लेते हैं? गौर कीजिएगा. 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है. यस, 1 2 3 4. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चों, तो कायरल कार्बन कैसा कार्बन होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. कैसा कार्बन होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यानी इसके अराउंड जो 4 बॉन्ड्स हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल. सिंपल सी बात, ध्यान रखिएगा. ये जो 4 ग्रुप्स हैं बच्चों, इनको ऐसे चेक करना है. 1 CHO, सेकंड OH, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ, ये पूरा ग्रुप बच्चों इसमें आ जाएगा. गौर कीजिएगा, कुछ बच्चे इसे चेक करने में ऐसे गलती करते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे ऐसे. अब ऐसे जब आगे आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर 2 ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? सेम. फॉर एग्जांपल ये जो C3 है, अगर ऐसे आप चेक करोगे तो ये C4, ये CHOHN, ये दोनों आपको सेम लगेंगे. ये चेक करने का सही तरीका नहीं है. तो ब्लू में जो मार्किंग की गई वो गलत है. रेड में जैसे सर्कल्स बनाए हैं वैसे ही आपको चेक करना है. एक बॉन्ड पर उस मॉलिक्यूल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आपको पूरा कवर करना होता है. ध्यान रखिएगा. तो यहां पर ये जो C2 है जिस पे स्टार लगाया है, C2 जो है वो कैसा है बच्चों? कायरल कार्बन है. C2 इज कायरल कार्बन. ओके. तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, C2 कैसा है बच्चों? कायरल कार्बन. C2 कायरल कार्बन है, C3 भी कायरल कार्बन है, C4 कायरल कार्बन है, C5 भी कायरल कार्बन है. तो इसमें 4 कायरल कार्बन है. C6 कायरल कार्बन नहीं है, C1 भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहां पर C1 पर बच्चों एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. ओके. और हम कायरल कार्बन वही हो सकता है जो क्या बनाता हो? 4 सिंगल बॉन्ड्स. ध्यान रखिएगा. तो ये 4 कायरल कार्बन इसमें है बच्चों. अब इसमें से मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा. इस मॉलिक्यूल में IUPAC नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4 5 6. हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन कौन सा है? 6th नंबर, ये रहा. लेकिन मेरा अगला सवाल, इस मॉलिक्यूल में हाईएस्ट नंबर्ड IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग, या यूं कहें लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है? ध्यान से सुने, लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए C5. तो देखिएगा, इस C5 के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप, लास्ट कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप कौन सी साइड है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड. तो इसके नाम से पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल L. और ये रहा इसका मिरर इमेज.
जो जिसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए हम एग्जैक्ट ऑपोजिट है, C2 पर OH लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड, यहां राइट हैंड साइड उधर लेफ्ट हैंड साइड, यहां लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड, एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो C5 पर जो OH है वो भी तो ऑपोजिट होगा ना। तो आप देखिएगा यहां पर ये भी, ये सारे जो कार्बन्स हैं C2 C3 C4 एंड C5 ये सारे कैसे हैं, कायरल कार्बन्स। C5 से जुड़ा हुआ OH ग्रुप कौन सी साइड है बच्चों, राइट हैंड साइड। तो इसके नाम से पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल D। दैट्स इट बच्चों, ध्यान रखिएगा। दिस इज D फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये मिरर इमेज फॉर्म्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। और याद रखिएगा बच्चों, यहां पर जितना रोटेशन इस डी फॉर्म का होगा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रोटेशन किसका होगा, एल ग्लूकोज का। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन, जितना भी डिग्री, एक सिंपल फंडा समझें, सपोज इसका रोटेशन है प्लस थीटा, तो इसका कितना होगा, माइनस थीटा। दैट्स इट, एग्जैक्ट ऑपोजिट रोटेशन इनका होता है। यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, डिफरेंट। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, हम फ्रक्टोज के इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, C3 C4 और C5 यहां पर है। ये C3 C4 C5 यहां पर है। जिस भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन्स हो, जैसे कि हमने ग्लूकोज में देखा और जैसे कि हम फ्रक्टोज में देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिस भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन्स हो वहां पर आपको एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना है, लास्ट कायरल कार्बन को देखना है। लास्ट कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH राइट हैंड साइड लिखा है प्लेनर स्ट्रक्चर में, तो नाम से पहले D आएगा। और लास्ट कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH अगर प्लेनर स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है तो नाम से पहले L आएगा। दैट्स इट। अब बच्चों इसमें से एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक क्या होगा, लेवो रोटेटरी। कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और कौन सा लेवो रोटेटरी होगा, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये हम सीधा स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है विथ PPL, तभी पता चलता है। ध्यान रखिएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, तो ये समरी है बच्चों, जो हमने सारा डिस्कशन किया उसकी समरी ये है कि इन डी फॉर्म OH ग्रुप ऑन लास्ट कायरल कार्बन is on right hand side, RHS means right hand side in the planar structure, whereas in L form OH group attached to last chiral carbon is on left hand side in planar structure. Dextro rotation means clockwise rotation of PPL or plane polarized light is indicated by a plus sign written in the bracket. यानी जब भी किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का क्लॉकवाइज रोटेशन शो करना होगा सपोज, तो कैसे शो करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, प्लस। Similarly, levo rotation means anti-clockwise rotation of PPL is indicated by a minus sign written in the bracket. और एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा बच्चा, जो कि आपको बताया गया हमने हमारे द्वारा कि D and L notations have no direct relationship with optical activity of the compound. मींस अगर किसी कंपाउंड के नाम से पहले D लिखा हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो। किसी कंपाउंड के नाम से पहले अगर कैपिटल L लिखा हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो लेवो रोटेटरी हो। फॉर एग्जांपल, कैपिटल D ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैपिटल D ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैपिटल D फ्रक्टोज इज लेवो रोटेटरी। कैपिटल D, देखो इसके नाम से पहले भी क्या लिखा हुआ है, कैपिटल D, लेकिन ये होता कैसा है, लेवो रोटेटरी। कैसे पता चला, एक ही तरीके से पता चला, एक्सपेरिमेंट करके पता चला। इसलिए बच्चों रटना नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के नाम से पहले कैपिटल D लिखा हो तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। D and L notations have no direct relationship with the optical activity of the compound. सिंपल। अगर एक मिरर इमेज फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा मिरर इमेज फॉर्म कैसा होगा, लेवो रोटेटरी। दैट्स इट। तो इतनी सी बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और आइए अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स की। तो ब्रॉडली मोनोसेकेराइड्स, अभी तक हमने केवल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पढ़ा है। एक्चुअली मोनोसेकेराइड्स टू फॉर्म्स में मिलते हैं, स्ट्रेट चेन एज वेल एज साइक्लिक फॉर्म्स। मोनोसेकेराइड्स हैविंग 5 और मोर कार्बन्स। 5 और मोर कार्बन्स का मीनिंग क्या हुआ, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस। मोनोसेकेराइड्स हैविंग 5 और मोर कार्बन्स मेनली एग्जिस्ट इन देयर साइक्लिक फॉर्म्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। और ये जो साइक्लिक फॉर्म्स होती है बच्चों, मेनली 2 टाइप्स की रिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। एक को बोलते हैं पायरेनोज रिंग फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं फिरेनोज रिंग फॉर्म्स। दीज नेम्स वर गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड हावर्थ। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में।
सबसे पहले फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग होता है। क्या मीनिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग मींस रिंग में 5 एटम्स होंगे। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। जबकि पायरेनोज रिंग फॉर्म में 6 मेंबर्ड रिंग होता है, यानी 6 एटम्स होते हैं रिंग में। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 कार्बन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। पायरेनोज रिंग फॉर्म is found in glucose and furanose ring form is found in fructose, for example. Then we come to cyclic forms of glucose. Glucose इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ग्लूकोज के दो साइक्लिक फॉर्म्स, एक को बोलते हैं अल्फा फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं बीटा फॉर्म। लीनियर फॉर्म दोनों जो है वो कॉमन सेम ही है, डी फॉर्म। डी फॉर्म के ही डी फॉर्म तो लीनियर फॉर्म का नाम है। अब उसके दो साइक्लिक फॉर्म्स बने, एक को बोला अल्फा फॉर्म और दूसरे को क्या बोला? बीटा फॉर्म। देखिए अब इन दोनों में एक ही डिफरेंस मिलेगा, यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। और हम जानते हैं बच्चों, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है हम उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। सो दीज आर आइसोमर्स। और इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक ही कार्बन पर आपको डिफरेंस मिलेगा। इस कार्बन पर देखिएगा, एक में OH ग्रुप नीचे की साइड है जबकि दूसरे में OH ग्रुप ऊपर साइड है, अबव द प्लेन ऑफ रिंग एंड दिस इज बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। एक को बोला अल्फा फॉर्म और दूसरे को बोला बीटा फॉर्म। इन्हें स्पेसिफिकली बोला जाता है एनोमर्स। अभी क्या होते हैं थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थोड़ी सी कि सर ये स्टेट चेन फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म कैसे बन गया? तो एक रिएक्शन से बना और उस रिएक्शन का नाम है साइक्लाइजेशन। बहुत सिंपल सा, नाम से हिंट मिल रहा है। द रिएक्शन बाय विच लीनियर फॉर्म और स्टेट चेन फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक फॉर्म इज कॉल्ड एज साइक्लाइजेशन रिएक्शन। और साइक्लाइजेशन रिएक्शन की हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये आपके सिलेबस में नहीं है। नीट में आज तक इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा। बस क्यूरियोसिटी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ी सी देर बात करेंगे। ये है स्ट्रेट चेन फॉर्म, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप इसका। अब गौर से देखिएगा, ये जो C1 है यहां पर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ये C5 पर जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब आप कहेंगे सर इतनी दूर से, समझते हैं रीजन क्या। सबसे पहली बात, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। जब हम इसका एक मॉडल बनाए तो 3D में ये इस तरह से रोटेट करके ये इस तरह से कॉइलिंग हो जाएगी। अब आपको पूछना चाहिए सर कॉइलिंग क्यों हो जाएगी? उसका लॉजिकल रीजन ये है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इनके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो इनके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होकर के ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब जो राइट साइड में इस तरह से ग्रुप लिखे हुए हैं, देखिएगा बच्चों, वो नीचे की तरफ आएंगे। C2 पर OH राइट साइड नीचे, C3 पे लेफ्ट साइड ऊपर, C4 पर राइट साइड नीचे, C5 पर राइट साइड नीचे। गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो C4 C5 बॉन्ड देख रहे हैं बच्चों, इसको अराउंड, अगर इस बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स को रोटेट किया जाए ये लाइक दिस, तो OH ग्रुप जो नीचे की तरफ है वो साइड में आ जाएगा, CH2H ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। तो ये देखिएगा यहां पर ये OH राइट साइड पे आ गया, ये CH2H ऊपर चला गया, ये ऊपर, और H नीचे आ गया, ये H नीचे। अब रिएक्शन होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर पहले क्यों नहीं हो सकता, यहां क्यों नहीं हो सकता? यहां भी रिएक्शन हो सकता है, पर जब ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा तो 7 एटम्स का रिंग बनेगा, जो कि उतना स्टेबल नहीं होता बच्चों जितना कि क्या होता है 6 एटम्स वाला रिंग। दैट्स व्हाई। तो देखिएगा यहां पर रिएक्शन कैसे होगा, इसी डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड पर भी है, देखिएगा ये है ओपन चेन फॉर्म। अभी भी ये ओपन चेन फॉर्म ही है, बस ये पास में आया है कॉइल होकर के, अभी क्लोज रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। कैसे होगा देखिएगा, यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड O है, सबसे पहले बच्चों ये जो C डबल बॉन्ड O और ये H है, इस पर ये फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इससे पहले जुड़ा हुआ ही है, ये है C1। अब ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं इस पे लोन पेयर्स होते हैं। सबसे पहले ये OH माइनस इससे H+ विड्रॉ कर लेगा, तो H+ विड्रॉ करने पे यहां पर क्या बन जाएगा? OH। और ये जो कार्बन है इस पर प्लस चार्ज आएगा। ऑब्वियस सी बात, जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। इसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं बच्चों, ये कार्बोकैटायन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस पे इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें इस लोन पेयर का अटैक होगा और बनेगा न्यू बॉन्ड। ये है न्यू बॉन्ड। रेड कलर में जो शो किया गया है वो क्या है? न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड। लेकिन बच्चों बात ये है, जब यहां पर लोन पेयर का अटैक होगा और एक न्यू बॉन्ड बनेगा तो देखें आप, कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है? 4, 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो बेसिकली बच्चों यहां पर जब ये लोन पेयर का अटैक होगा तो ये OH ग्रुप जो आप देख रहे हैं ये या तो नीचे की साइड पुश किया जा सकता है या ऊपर की साइड पुश किया जा सकता है। दोनों ही बातों के चांसेस, दोनों ही इवेंट्स के चांसेस इक्वल है, प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। तो अगर ये ऊपर की तरफ पुश किया गया तो बनेगा बीटा फॉर्म,
और अगर नीचे की तरफ पुश किया गया तो क्या बनेगा, अल्फा फॉर्म। दैट्स इट। और ये रिएक्शन जो है एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इनमें इक्विलिब्रियम चलता रहता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये भी होगा और लीनियर फॉर्म भी होगा या ओपन चेन फॉर्म भी होगा, लेकिन मेनली कौन सा फॉर्म होगा, साइक्लिक फॉर्म। बच्चों ये जो है 99.9% साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं, 0.1% हार्डली क्या होता है, ओपन चेन फॉर्म। ये बातें आपको याद रखनी है, काम आएंगी कुछ आगे बातों को समझने के लिए जब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये मैकेनिज्म आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, क्यूरियोसिटी हो सकती थी कुछ बच्चों को, इसलिए डिस्कस कर लिया गया। अब काम की बात सुनिएगा ध्यान से, आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि यहां पर एनोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, केवल एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, यानी एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट। दैट्स इट, और कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। फिर देखिएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज मेनली अकर्स इन साइक्लिक फॉर्म्स कॉल्ड एज एनोमर्स। उनको हमने क्या बोला, एनोमर्स। क्या डिफरेंस है एनोमर्स में, पोजीशन ऑफ H and OH ग्रुप्स ऑन जस्ट वन कार्बन विच इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल C1 इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड C2 इन केस ऑफ फ्रक्टोज। रटना नहीं है कि C1 ही हमेशा एनोमेरिक होगा। एनोमेरिक का सिंपल सा मीनिंग है जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप टू टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, आप देखिए ये पीछे स्लाइड में, ये देखिएगा यहां पर ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन है, ये है कार्बोनिल कार्बन। यही क्या बनता है साइक्लिक फॉर्म में, क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन। तो डेफिनेशन देखिएगा आप, व्हेन लीनियर फॉर्म ऑफ ए मोनोसैकेराइड कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक फॉर्म देन द एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। और एनोमर्स में उसी पर क्या होता है, डिफरेंस। दैट्स इट। एक बात और, एनोमर्स एग्जिस्ट ओनली इन साइक्लिक फॉर्म्स, यानी अल्फा और बीटा फॉर्म की बात हम सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में ही करेंगे, लीनियर फॉर्म में करने वाले नहीं हैं। इसके बाद बच्चों एक और टर्म आता है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स आर ऑल्सो आइसोमर्स टू सुगर्स दैट डिफर ओनली इन कॉन्फिगरेशन एट अ सिंगल कार्बन एटम आर कॉल्ड एज एपीमर्स एंड दीज एग्जिस्ट इन बोथ लीनियर एज वेल एज साइक्लिक फॉर्म्स। एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेन्नोज, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ कंपेयर करते हैं। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो लीनियर स्ट्रक्चर। कंपेयर करें बच्चों, C1 पर सेम, C2 पर सेम, C3 पर सेम, C4 पर डिफरेंट है। आप यहां देखिए केवल एक कार्बन पर यहां पर OH का पोजीशन यहां राइट साइड, यहां पर लेफ्ट साइड, बाकी सब सेम। तो ये क्या है, सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ये क्या है, आइसोमर्स। कैसे आइसोमर्स, एपीमर्स बोलेंगे हम इनको यहां पे। उसी प्रकार यहां पर देखिए आप मेन्नोज और ग्लूकोज को कंपेयर करें, C1 पर सेम, C2 पर डिफरेंट है, C3, C4, C5, C6 सब सेम। तो हम बोलेंगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। हम ये भी बोल सकते हैं मेन्नोज एंड ग्लूकोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन बच्चों अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं, देखिएगा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। किसको, डी मेन्नोज एंड डी गैलेक्टोज को कंपेयर करें तो देखिएगा C2 पर डिफरेंस है और C4 पर भी डिफरेंस है। 2 कार्बन्स पर डिफरेंस है बिटवीन मेन्नोज एंड गैलेक्टोज, तो हम इन्हें एपीमर्स नहीं बोल सकते। आइए इसको समराइज करते हैं, है ना। एक बात और बच्चों, एनोमर्स भी हमने देखा था एक ही कार्बन पर डिफरेंट होते हैं, तो आपके माइंड में ऑब्वियस सा डाउट आना चाहिए, सर फिर तो एनोमर्स को भी हम एपीमर्स बोल सकते हैं। यस, एनोमर्स आर ऑल्सो एपीमर्स, बट स्पेसिफिकली वो एपीमर्स जो एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, एनोमर्स। द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। दैट्स इट। और आइए जो हमने एपीमर्स का डिस्कशन किया उसको भी समराइज कर लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। 3 स्टेटमेंट से आपको बताना है ट्रू फॉल्स। सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए। पहला, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपीमर्स, हमने देखा था। यस, वो एक ही कार्बन पर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। Then the second is D glucose and D mannose are epimers. Yes, ये भी क्या हो जाएगा, true. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए D galactose and D mannose are epimers, तो आप बोलेंगे ये क्या है, false. That's it बच्चों। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहले पेंटोजेस। तो पेंटोजेस में there are 2 important examples, ribose and deoxyribose. राइबोज का जनरलाइज फॉर्मूला होता है C5H10O5, जबकि डीऑक्सीराइबोज का जनरल फॉर्मूला होता है C5H10O4। हमने देखा था दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, गौर कीजिएगा। सेकंड कार्बन पर अगर आप देखें तो यहां पर OH ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में यहां पर एक
ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए बोला डीऑक्सीराइबोज। डी फॉर डेफिशिएंसी, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन। राइबोज में एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर दे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। Now deoxyribose is found in DNA whereas ribose is found in RNA. DNA का फुल फॉर्म होता है deoxyribonucleic acid, RNA का फुल फॉर्म होता है ribonucleic acid. Ribose is also found in a very important molecule and that is ATP. ATP का फुल फॉर्म होता है adenosine triphosphate. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में जब एनर्जी यूज होती है तो किस फॉर्म में यूज होती है? ATP। इसके साथ ही बच्चों FMN, FAD, NAD ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं विच एक्ट एज को एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और इनमें भी क्या पाया जाता है? राइबोज। देन हेक्सोजेस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आता है ग्लूकोज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है अर्थ पर? ग्लूकोज। इसके साथ ही इसे ग्रेप शुगर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ग्रेप्स में अबंडेंटली मिलता है। ब्लड शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो मेनली किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और इसका एक और नाम है डेक्सट्रोज। क्यों बोला डेक्सट्रोज? हम पहले भी बात कर चुके हैं। डी ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज। ध्यान रखिए डेक्सट्रोज सिर्फ किसका नाम है? ग्लूकोज को। तो आपसे पूछा जा सकता है डेक्सट्रोज इज अनदर नेम फॉर ऑप्शंस ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेन्नोज, फ्रक्टोज। आंसर विल बी ग्लूकोज। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इट इज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्यों बोला मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स विद ग्लूकोज। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल मेटाबॉलिक पाथवे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस की शुरुआत ही कहां से होती है? ग्लाइकोलाइसिस से। फिर चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, शुरुआत कहां से होती है? ग्लाइकोलाइसिस से। एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, one molecule of glucose is ultimately broken down into 2 molecules of pyruvic acid, which enter into mitochondria, are converted into acetyl coenzyme A and which further enters into Krebs cycle. कुल मिलाकर बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? ग्लूकोज से। सो इट इज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देन वी कम टू फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है बच्चों इसका एक और नाम है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में कौन सी शुगर मिलती है? फ्रक्टोज। इट इज ऑल्सो फाउंड इन हनी एंड इट इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट और शुगर। आपसे पूछे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट या शुगर कौन सा है तो आप बोलेंगे फ्रक्टोज। इसके साथ ही बच्चों इसका एक और नाम है लेव्युलोज। लेव्युलोज क्यों बोला? बिकॉज इट इज लेवोरोटेटरी इन नेचर। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। एक बात और बच्चों, जो पुराने नोमेनक्लेचर में कमी रह गई थी इसे यहां पर दूर कर दिया गया। यूलोज यहां पर बता रहा है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और लेव यहां बता रहा है ये कैसा है? लेवोरोटेटरी इन नेचर। गेटिंग द पॉइंट? देन वी कम टू गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को कहते हैं बच्चों ब्रेन शुगर। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ब्रेन टिश्यू या नर्वस टिश्यू में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन शुगर। ये बहुत ही कम फ्री फॉर्म में मिलता है। इट रेयरली अकर्स इन फ्री फॉर्म, ऑफन किसी कंपाउंड के पार्ट के तौर पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम लें लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। मिल्क में जो शुगर मिलती है उसे बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, मींस इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। कौन कौन से? एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होता है बच्चों ग्लूकोज। गेटिंग द पॉइंट? तो ये ग्लूकोज के साथ बाउंड फॉर्म में आपने देखा तो अक्सर ये बाउंड फॉर्म में मिलता है। अदर एग्जांपल्स आर हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। द सेम आल्सो अप्लाइज टू मेन्नोज। इट इज फाउंड इन हेमीसेलुलोज व्हिच इज फाउंड इन वुड। देन बच्चों हम आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, सेकंड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? These are carbohydrates made up of 2 to 10 monosaccharide units and ये जो monosaccharide units होती हैं they are linked with the help of glycosidic bonds। monosaccharides के बीच में, 2 monosaccharides के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसका नाम क्या है यहां पर? glycosidic bond। अब सवाल ये है कि glycosidic bond कैसे बनता है? तो केमिकल रिएक्शन से बनता है बच्चों जिसका नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है ये? नाम से हिंट मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में 2 काम एक साथ होंगे। एक तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा प्लस जो 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहां पर किसके बीच में होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन? एक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप तथा दूसरे मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के बीच में रिएक्शन होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप का मतलब यह है बच्चों लीनियर फॉर्म में जो एल्डिहाइड ग्रुप था जब उसका साइक्लाइजेशन हुआ तो वो जो ग्रुप प्रेजेंट है उससे बात हो रही है ना? ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप।
ठीक है, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप। उसी तरह से लीनियर फॉर्म में जो कीटोन ग्रुप है उसका जब साइक्लाइजेशन हुआ तो जो ग्रुप बना उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं हेमी कीटल ग्रुप। तो इन ग्रुप्स के बीच में है ना एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप तथा OH ग्रुप के बीच में क्या होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ऑलवेज किसके बीच में बनेगा, बिटवीन साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे सिंपल होते हैं डाइसैकेराइड्स। व्हाट आर डाइसैकेराइड्स, नाम से मिल रहा, डाई मींस टू, सो ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच आर made up of two monosaccharide units are called as disaccharides. The important examples are sucrose, trehalose, maltose, lactose, and all disaccharides are sugars. सबसे पहले हम आते हैं माल्टोज पर। माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट सुगर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज माल्ट सुगर, बहुत सिंपल सा रीजन है। माल्ट का मीनिंग होता है बच्चों स्प्राउटेड बार्ली सीड्स, स्प्राउटेड बार्ली सीड्स उसे बोलते हैं माल्ट, और उसमें अबंडेंटली मिलता है ये, तो नाम दे दिया माल्ट सुगर। इट इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है बच्चों तो पहले बनता है डेक्स्ट्रिन, और फर्दर जब डाइजेशन होता है तो अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें, माल्टोज। दैट्स इट। इट इज अबंडेंटली फाउंड इन जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स। अभी हमने देखा जैसे बार्ली, जौ, जितने भी चपाती जिससे भी बनती है, फॉर एग्जांपल व्हीट, फॉर एग्जांपल कॉर्न, फॉर एग्जाम्पल राइस, ये जो है इन्हें बोलते हैं स्टार्ची सीड्स। इनके अंदर अबंडेंटली हमें क्या मिलता है, स्टार्च, और उसके डाइजेशन से हमें फिर क्या मिलेगा, माल्टोज। अब माल्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, इसमें क्या होता है देखिए, दो मोनोसैकेराइड्स है, कौन से, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। अब ये बना कैसे उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन होने जा रहा है इसके बीच में। देखिएगा सबसे पहली बात ये है फर्स्ट कार्बन और इसका है फोर्थ कार्बन। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है एनोमेरिक कार्बन एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का, यहां से निकलेगा OH माइनस और यहां से जाएगा H प्लस। तो यहां से क्या रिमूव हुआ, OH माइनस, यहां से क्या रिमूव हुआ, H प्लस। ये दोनों बच्चों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, डिहाइड्रेशन। और ये जो कार्बन है, अब आप दिमाग लगाएं, यहां पर जो OH माइनस निकलेगा तो पीछे क्या आएगा, C प्लस, और यहां से जब H प्लस निकलेगा तो इस पर क्या आएगा, O माइनस। C प्लस और O माइनस के बीच में रिएक्शन होकर के बनेगा एक न्यू बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल इस कार्बन के पास। तो यहां पर लोन पेयर जब डोनेट हो जाएगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बनेगा न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बात यहां पर बच्चों समझने वाली और याद रखने वाली यह होती है कि आप देखें, एक मोनोसैकेराइड यूनिट का तो है फर्स्ट कार्बन, और दूसरे का कौन सा कार्बन है, जो कार्बन्स पर फोकस होता है, फोकस कार्बन्स पर होता है कि कौन कौन से कार्बन्स आपस में लिंक होने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक का है फर्स्ट कार्बन, दूसरे का है फोर्थ कार्बन। तो 1 4 लिखा, एरो का निशान लगा दिया। अब देखना है क्या किसी का एनोमेरिक कार्बन था इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, यस, इस ग्लूकोज यूनिट का क्या है, एनोमेरिक कार्बन। तो इसका कौन सा एनोमेरिक फॉर्म है, अल्फा। तो हम इससे पहले क्या लिख देंगे, अल्फा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट्स इट। तो ये देखिएगा अगेन स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Then we come to lactose. Lactose is also a disaccharide. It is also called milk sugar because it is found in milk and it is the least sweet sugar. सबसे कम मीठी सुगर आपसे पूछे कौन है, तो लैक्टोज, and it is found only in mammals. Obvious सी बात है, मिल्क का प्रोडक्शन केवल मैमल्स में होता है, so lactose is found only in mammals. एक और डाइसैकेराइड सुगर है जिसका नाम है ट्रेहेलोज. It is found in hemolymph of insects. ये क्या होता है, the fluid that circulates through circulatory system of insects is called as hemolymph. तो उसमें एक सुगर मिलता है जिसका नाम है ट्रेहेलोज, ध्यान रखना है। सुक्रोज, सुक्रोज भी एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है बच्चों, इसके कई नाम है। फॉर एग्जांपल केन सुगर, क्यों बोला केन सुगर, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुगर केन, गन्ना, गन्ने से मिलता है, इसलिए जब गन्ने का जूस हम पीते हैं तो बेसिकली यही होता है। चीनी, सिंपल सी बात है, घरों में जो आम बोलचाल में चीनी जिसे हम कहते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज। एक और नाम है टेबल सुगर बिकॉज इट इज ऑफन फाउंड ऑन द डाइनिंग टेबल। कॉमन सुगर बिकॉज वी कॉमनली यूज इट। कमर्शियल सुगर बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन द कमर्शियल शॉप्स और ग्रोसरी शॉप्स। फिर काम की बात बच्चों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो मेनली किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज। अब आपको पूछना चाहिए क्यों, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, किसका बना हुआ है, दो मोनोसैकेराइड्स, कौन कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो क्या होता है यहां पर इनके बीच में बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सुक्रोज इज केमिकली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इंडिविजुअली। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग है, उसकी कंपैरिजन में सुक्रोज क्या है, केमिकली लेस रिएक्टिव। तो यहां पर बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम लीव्स
जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। सिंपल, गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज वाई सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह है ग्लूकोज कौन से, गौर कीजिएगा यहां पर कौन सा एनोमेरिक फॉर्म है, अल्फा, अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। और यहां पर कौन सा एनोमेरिक फॉर्म है फ्रक्टोज का, बीटा। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, ये सेकेंड कार्बन से लिंक्ड है यहां पर थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पर नंबरिंग करें तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, और यहां पर बात करें ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बच्चों देखिए आप कौन से कार्बन लिंक होने जा रहे हैं, 1 और 2। तो देखिएगा हम ऐसे लिखेंगे 1 एंड 2, पर देखिए एनोमेरिक किसका है, दोनों के ही एनोमेरिक है। फ्रक्टोज में C2 एनोमेरिक होता है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो है सेकंड पोजीशन पे होता है, ठीक है। और ग्लूकोज में C1 एनोमेरिक है, तो हम दोनों तरफ एरो का निशान लगाएंगे। ये बता रहा है कि दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में लिंक्ड है। प्लस ग्लूकोज का एनोमेरिक फॉर्म कौन सा है, अल्फा। फ्रक्टोज का एनोमेरिक फॉर्म कौन सा है, बीटा। तो हम बोलेंगे कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बच्चों इसमें, अल्फा 1 2 बीटा, दैट्स इट, हम ऐसे बोलेंगे। प्लस रिंग फॉर्म देखें बच्चों, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, पायरेनोज रिंग फॉर्म। ग्लूकोज कौन से रिंग फॉर्म में है, पायरेनोज। जबकि फ्रक्टोज में 1 2 3 4 5, रिंग में 5 एटम्स, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो फ्रक्टोज कौन से रिंग फॉर्म में है, फ्यूरेनोज। तो हम बोलेंगे सुक्रोज किसका बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज प्लस बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। Then we come to the summary table for disaccharides. This table is very important. जो भी हमने डिस्कस किया वो पूरा इसमें समराइज किया गया है, आपको ध्यान रखना है। मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन सी हैं, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है, ट्री हेलोज के अंदर अल्फा 1 1 अल्फा, यानी इसमें भी एनोमेरिक कार्बन जुड़े हुए हैं। अब एक फंडा और आता है बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। कौन सा सुगर रिड्यूसिंग होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें एक का एनोमेरिक दूसरे के नॉन एनोमेरिक कार्बन से लिंक्ड हो थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो होगा रिड्यूसिंग, जैसे कि माल्टोज एंड लैक्टोज। और जिसमें दोनों के एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होंगे वो होंगे नॉन रिड्यूसिंग। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एंड ट्री हेलोज, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, गेटिंग द पॉइंट। एक और सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, जिसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बच्चों, वो कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। क्यों, लॉजिक ये है बच्चों कि जो हेक्सोज सुगर्स होते हैं इनमें फोर्थ कार्बन क्या होता है, नॉन एनोमेरिक। दैट्स वाई एक का एनोमेरिक होगा दूसरे का नॉन एनोमेरिक, मींस वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग इन नेचर। अब ये जो कॉन्सेप्ट आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल केमिकल टेस्ट, और उसके प्रैक्टिकल केमिकल टेस्ट को हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। एक्चुअली दो अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक सॉल्यूशन एक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया जिनका नाम था बेनेडिक्ट, दूसरे साइंटिस्ट ने डिजाइन किया जिनका नाम था फेलिंग। तो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इसमें क्या होता है, दोनों ही सॉल्यूशंस के अंदर कैटायन कॉमन है और कैटायन होता है क्यूप्रिक आयन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एनायन का होता है बच्चों। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एनायन होता है सिट्रेट आयन, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन में एनायन होता है टार्ट्रेट आयन। So basically, Benedict solution is alkaline solution of cupric citrate complex ion, whereas Benedict's failing solution is alkaline solution of cupric tartrate कॉम्प्लेक्स आयन। इतना कोई आपसे पूछेगा नहीं, काम की बात ध्यान रखें, कैटायन कॉमन है क्यूप्रिक आयन। नाउ बच्चों ये जो क्यूप्रिक आयन है, इसको अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो हम जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कोई अगर सुगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका रिडक्शन कर देगा वो, और उस सुगर को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग सुगर, दैट्स इट। और प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा, जब क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन होगा बच्चों तो यहां पर बनेगा क्यूप्रस आयन, Cu+, एक कंपाउंड बनेगा cuprous oxide. So this gets precipitated because cuprous oxide is insoluble in water, और इसका कलर कैसा होता है, रेड। तो बच्चों सॉल्यूशन में कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पहले टेस्ट ट्यूब में था ब्लू कलर का, और अब उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर, यहां पर बॉटम पर क्या बनेगा बच्चों, रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो सुगर हमने ऐड किया वो कैसा है, रिड्यूसिंग इन नेचर, दैट्स इट। नाउ वी कम टू कंक्लूजन। ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, बच्चों ध्यान रखिएगा। एक बात और बच्चों, ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट होता है, बेसिकली ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, ठीक है। अब सारे मोनोसेकेराइड्स तो एल्डिहाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज इज अ कीटोज, कोई बात नहीं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एल्कलाइन पीएच पर, अभी मैंने आपको बताया फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन पीएच पर
कीटोन ग्रुप भी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. इट मींस ऑल मोनोसैकेराइड्स कैसे होंगे? रिड्यूसिंग इन नेचर. सिंपल. सेकंड, सम डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड्स अल्टीमेटली, सम डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग व्हाइल अदर्स आर नॉन रिड्यूसिंग. अभी हमने देखा उसका बेसिस क्या होगा. आप तो डाइसैकेराइड्स याद रख लें. कौन से डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होंगे? जिसमें एक का एनोमेरिक किसके साथ जुड़ा हो? दूसरे के नॉन एनोमेरिक कार्बन के साथ. और जिस डाइसैकेराइड में एनोमेरिक के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग. फॉर एग्जांपल सुक्रोज. एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर. क्यों बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है. पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स. तो इतनी लॉन्ग चेन्स होती हैं, अक्सर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं. तो इस इतने बड़े मॉलिक्यूल में एक सिंगल रिड्यूसिंग एंड, एक एंड होगा रिड्यूसिंग, दूसरा होगा नॉन रिड्यूसिंग. सिंगल रिड्यूसिंग एंड जो है बच्चों वो सफिशिएंट नहीं होता है रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के लिए. दैट्स व्हाई ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर. दैट्स इट. देन वी कम टू पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकेन्स.